Let us see rock. Okay, what is a rock? Rock is nothing but aggregate of few minerals. Few minerals are aggregated or attached with each other in such a complex way, we are calling it as a rock. Getting it? Okay, so एक रॉक ले लो, उसमें क्या है, वो 3 से 4 मिनरल्स है. मिनरल सारे सेपरेट करो, उसमें क्या है, एटम्स है. एटम्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है. सो एज यू गो डीपर एंड डीपर, यू गो टू द पार्टिकल फिजिक्स, माइनर पार्टिकल्स. इनसाइड दैट यू गो, व्हाट इज देयर, एनर्जी है. क्वार्क्स है, क्वार्क्स के अंदर जाओ, क्या है, एनर्जी है. सो यू गो टू द स्ट्रिंग थ्योरी. ओके, सो स्ट्रिंग थ्योरी क्या बोलती है? स्ट्रिंग थ्योरी सेज दैट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी. ओके, जस्ट एनर्जी इज वाइब्रेटिंग इन अ डिफरेंट वे. सो गोल्ड और आयन में क्या डिफरेंस है? अगर हर एक मिनरल में एटम ही है, हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही है, तो सारे एक दूसरे से अलग अलग क्यों दिखते हैं? व्हाट इज द रीजन? सो स्ट्रिंग थ्योरी बोलती है कि सारे एक दूसरे से इसके लिए दिखते हैं क्योंकि उनके अंदर, सबके अंदर जो एनर्जी है वो अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है. सो दैट इज द बेसिक ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी. Getting it? I think 2019 the string theory question was asked on string theory as well. Okay, so this is very important thing you should know. Okay, so why gold is different, is that gold different from that of iron? Because in the end everything has proton, neutron, electron. Inside proton, neutron, electron you have quarks. Inside the quarks you have energies, and these energies, they are vibrating at different frequencies. That's why one element is different from another. Okay, so this rock is nothing but aggregate of few minerals. Okay, so minerals are aggregated in a certain way. Okay, you are calling it as a rock. Petrology is a science which studies rock. Pedagogy is a science which studies soil. Getting it? Okay, so rocks are of 3 types. Okay, what are these 3 types? You have a igneous rock, you have a metamorphic rock, you have a sedimentary rock. Okay, so 3 types of rocks that we have. Now let us understand the characteristics of these 3 rocks. Okay, so first is an igneous rock. So this word comes from the Latin fire. Okay, igneous is the god of fire as well in the Greco-Roman literature. Okay, so this igneous rock means rock is coming from the fire. So directly from the lava, which rock first comes is the igneous rock. Okay, so these rock can be different type. So जो लावा ऊपर आ रहा है, not necessary it is going to get solidified on the surface. It may get solidified on the surface or it may get solidified below crust. So अगर ये surface के ऊपर solidify होता है तो जो igneous rock होगा उसके characteristics अलग होंगे. अगर ये surface के नीचे solidified होता है तो धीरे धीरे cool हो जाएगा, इसके characteristics अलग है. Getting it? Okay. So first rock is igneous rock. Okay. So it forms when magma cools and solidifies. Okay. Now here you can, as I told you, it is not necessary that rock is going to solidify on the surface. Here rock is getting solidified on the surface. So cooling happens very fast. Getting it? Here cooling is going to happen very fast, and grain size of the rock will be different. Okay, so this texture of the rock will have a different texture. This texture is because of the grain size, and this grain size is because of where this magma is getting cooled. क्योंकि ऊपर जब ये आ जाएगा तो आउटर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा. ये पानी के नीचे भी हो सकता है, हवा में भी हो सकता है, तो जल्दी कूल हो जाएगा. नीचे क्या होगा, टेम्परेचर पहले से ज्यादा है तो कूल होने में थोड़ा टाइम लगेगा. सो यहां पे कूलिंग कैसा है, स्लो कूलिंग है, यहां पे स्लो कूल डाउन है. ओके, यहां पे कैसा कूलिंग हो रहा है, स्लो कूलिंग हो रहा है इस जगह पे. यहां पे फास्ट कूलिंग हो रहा है यहां पे. गेटिंग इट? ओके, सो रॉक का टेक्सचर जो है वो किस पे डिपेंड होगा, साइज ऑफ द ग्रेन ऑफ द रॉक एंड अरेंजमेंट ऑफ द ग्रेन. रॉक का ग्रेन कैसा अरेंज हो गया और ग्रेन का साइज क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द रॉक. टेक्सचर रॉक होगा. टेक्सचर मतलब क्या होता है, टेक्सचर मतलब कि कितना रफ होता है, कितना स्मूथ होता है. जैसे कि हम जाते कपड़ा देखते हैं कि कपड़े का टेक्सचर कैसे है. ओके, रफ कपड़ा होता है तो हम बोलते हैं अरे इतना महंगा कपड़ा, हम इतना महंगा कैसे.
अगर मसलिन होता है, सिल्क होता है तो उसका टेक्सचर इतना स्मूथ होता है, फिर हम बोलते हैं हाँ ये प्राइस सही लगाई उसने। गेटिंग इट? तो रॉक का भी टेक्सचर होता है, स्मूथ रॉक हो सकता है, रफ रॉक हो सकता है। एक बसाल्ट रॉक का एक टेक्सचर है, बसाल्ट स्मूथ होता है, ग्रेनाइट निकालो थोड़ा सा रफ होता है। गेटिंग इट? ओके, सो अरेंजमेंट ऑफ द ग्रेन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द रॉक, and size of the grain depends upon where this rock is getting cooled. Getting it? Okay, so let us see these things. Okay, so यहां पे molten material अगर slowly cool हो जाता है, slowly cool हो रहा है molten material, यहां पे let us see, यहां पे molten material is getting cooled slowly, so size of the grain will be bigger. रॉक का जो ग्रेन होगा उसकी साइज बिग होगी। अगर मोल्टन मटेरियल सरफेस पे आके कूल हो जाता है तो थोड़ा फास्ट कूल होगा, तो साइज ऑफ द मटेरियल विल बी स्मॉलर। ओके, सो यहां पे सडन कूलिंग हो जाती है। सरफेस पे क्या होता है? सडन कूलिंग हो जाती है। कूलिंग सडन हो जाती है तो क्या होती है? ग्रेन की साइज जो होती है छोटी होती है और स्मूथ होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने सबने ग्रेनाइट देखा है घर में, कभी किचन में होगा, काम करते हुए ग्रेनाइट आपने हाथ में लेके देखा होगा। ओके, वैसे आपके घर में आपने या फिर कभी रोड का काम चल रहा होगा तो जो पत्थर फोड़ते वो वाला रॉक देखा आपने, तो उसका ग्रेनाइट देखो कितना फोड़ने के बाद बड़े बड़े ग्रेन्स निकलते और रफ होता है। और जो साइड में जो फोड़ते हैं, जो रोड के साइड वाले जो पत्थर फोड़ते हैं वो बसाल्ट होता है जनरली, वो सॉफ्ट होता है, वो लगता जोर से पर सॉफ्ट होता है। गेटिंग इट? ग्रेन जो है वो सडन कूल हो गया वहां पे। गेटिंग इट? ओके, सो दे आर कॉल्ड एज अ इग्नियस रॉक। तो ये कहीं पे भी कूल हो सकता है, इंटरमीडिएट कूलिंग है, सरफेस पे कूलिंग है, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। ओके, सो ये ओल्केनिज्म हुआ है यहाँ पे, तो ओल्केनो ऊपर आ गया है। So when volcano has happened over here, different rocks are coming out of the volcano. So surface you can see basalt and rhyolite. सरफेस पे कूल होता है तो क्या होता है? बसाल्ट एंड रायोलाइट। ओके, इंटरमीडिएट और बिलो क्रस्ट कूल होता है तो गैब्रू एंड ग्रेनाइट। सेम ही लावा है, अलग अलग जगह पे कूल हो गया है। एक जगह पे वही लावा कूल होता है तो क्या बनता है? बसाल्ट बनता है। वही लावा अगर डेप्थ में कूल होता है तो क्या बनता है? ग्रेनाइट, गब्रू बनता है। गेटिंग इट? सो बाहर तो हमें अलग दिखता है बट अंदर से मटेरियल सेम ही है उनका। गेटिंग इट? ओके, वोल्केनो से और क्या क्या बाहर आता है? वोल्केनिक ऐश बाहर आती है, ये देखो ये वोल्केनिक ऐश है। एक रॉक होता है उसे बोलते हैं प्यूमाइस। प्यूमाइस में क्या होता है? बहुत सारे होल्स होते हैं, so many holes are there inside the pumice. Getting it? Okay, so these are the different types of rocks which are coming out of the volcano. Now next type of rock is a sedimentary rock. So first rock was a igneous rock. Igneous rock बना, इससे क्या बना? ये माउंटेन बना। गेटिंग इट? इग्नियस रॉक से क्या बना? माउंटेन बना। ओके, माउंटेन बनने के बाद क्या होगा? माउंटेन के ऊपर बारिश हो जाएगी, बारिश की वजह से वहां पे रिवर बन जाएगी। गेटिंग इट? ओके, अभी माउंटेन के ऊपर बारिश होगी, रिवर बनेगी, तो रिवर क्या करेगी? इट इज गोइंग टू इरोड द माउंटेन। व्हेन इट इज गोइंग टू इरोड द माउंटेन, इट इज गोइंग टू हैव द सेडिमेंट्स ऑफ द इग्नियस रॉक्स अलोंग विथ इटसेल्फ। These sediments of the igneous rocks, it is going to transfer at so many places. So वेस्टर्न घाट पे एक रिवर बन गई गोदावरी, वहां पे ट्रैवल करते करते चली गई आंध्रा में कहीं पे, विजयवाड़ा में चली गई कृष्णा रिवर। ओके, महाबलेश्वर में वो राइज हो गई, वेस्टर्न घाट में चली गई विजयवाड़ा में, वहां पे उसने अपने साथ महाबलेश्वर से भी बहुत सारा इग्नियस रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स लेके, we call it as a sediments. These sediments got deposited in the Andhra. Okay, so for thousands of years the different types of sediments have been deposited in the Andhra. Okay, and these sediments, when they becomes compact, okay, the new type of rock is being formed which is called as a sedimentary rock. Okay, तो sedimentary rock कैसे बनता है? देखो यहाँ पे पहले वेदरिंग और इरोजन हो गया, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया,
उसका डिपोजिशन हो गया, फिर इसका बरियल हो गया। बरियल मतलब क्या, एक के ऊपर बहुत सारे लेयर्स बन गए। अभी ये जब लेयर्स बनते तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ द वेट एंड कॉम्पैक्शन उसमें से एक ग्लू टाइप का सीमेंटिंग मटेरियल सिक्रेट होता है। सो लेट अस से इसकी ये जो है ये लेयर्स है अलग अलग। ओके, सो ये जो लेयर्स है अलग अलग, ओके, सो these layers they get cemented with each other because of the secretion of certain cementing material. Okay, this is called as lithification. So the process of the different sedimentary particles sticking together because of the secretion of chemicals by the rocks is called as a lithification. So you can see over here, पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स थे सेडिमेंट्स के, उनमें केमिकल सीक्रेट हो गया, वो क्लोज आ गए एक दूसरे से, फिर उनका और कॉम्पैक्शन हो गया और क्लोज आ गए, देन दे बिकम वेरी हार्ड लाइक अ सिंगल रॉक. You won't be able to see, you won't be able to differentiate between them that these are the sediments. They become rock because of the cementation process. Okay, so they undergo the process of compaction and cementation. Okay, so this process of compaction and cementation is because of which what is being formed, this sedimentary rock, and this entire process is called as a lithification. Okay, very important terminology. Okay, so जब इनका compaction हो जाएगा, it will look like this. So this mountain is a sedimentary mountain. Now it is looking like a mountain, but ये कभी sediments थे, ऐसे एकदम loose sediments थे. But now it is looking like a hard mountain. कितना भी फोड़ो नहीं फूटेगा जल्दी ये. Getting it? Okay, so these are the different layers that you will see. Okay, ये sedimentary rocks ये अलग अलग layers है, ये अलग layer है, ये अलग लेयर है, ये अलग लेयर है, ये अलग लेयर है, ये नीचे का अलग लेयर है, अलग. यस, तो हो सकता है कि ये जो लेयर है ये मेन रिवर का लेयर, सेडिमेंट का लेयर है, ये उसके ट्रिब्यूटरी का सेडिमेंट्री लेयर है, ये कोई तीसरे ट्रिब्यूटरी का सेडिमेंट्री लेयर है. गेटिंग इट? गेटिंग इट? और वो सब आके एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट हो गए. गेटिंग इट? ओके, एंड दिस सेडिमेंट्री रॉक इफ यू सी, ओके, सो they are of, you will see the fossils in the sedimentary rock. The sedimentary rocks are one which are full of fossils. Okay, so you have a limestone, siltstone, mudstone, conglomerate. So different layers, and inside that you will see different fossils. If you go sometimes in the Jaisalmer, कोई है राजस्थान से? नहीं. If you go to the Jaisalmer, there is a fort called as a Golden Fort. Okay, so that Jaisalmer, the entire area was under the sea at some period of time. So वहाँ पे sedimentary rock बने हैं. So there outside this Jaisalmer fort, these people are selling this sedimentary rock 5, 10 rupees. Inside that rock, you will see the sediments of so many like few million years old animals are there in the sea. Their fossils you will see. Getting it? Everywhere they will be selling these things over there in that fort. You will see this fossil in the sedimentary rock. Okay. So this sedimentary rock is one of the very important rock. Okay. So next is a metamorphic rock. Okay. Metamorphism means changing in the form. Form change होता है. Grain का arrangement change होता है. Getting it? For example, तुम तीन लोग अभी, आप तीन लोग ऐसे अभी बैठे हो. Okay, you are one type of rock. अभी आप यहाँ पे आके बैठे, आप वहां पे आके बैठे, अलग हो गया रॉक. ये मेटामॉर्फिज्म हो गया, चेंज इन द फॉर्म. ओके, अभी चेंज इन द फॉर्म क्यों होता है? टेम्परेचर की वजह से. प्रेशर, वॉल्यूम, पीवीटी. वॉल्यूम का तो चलो यहाँ पे ज्यादा रिलेशन नहीं है, बट प्रेशर एंड टेम्परेचर, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके वजह से ये जो अंदर के ग्रेन होते हैं उनका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है. Either pressure is changing or either temperature is changing.